Good evening, ma'am. Hi, good evening. I'm just waiting for everybody to join in. All right, ma'am. Okay, good evening to all of you, all those who have joined the session for today. Good evening. Good evening. Yes, am I audible to everyone clearly? Yes, ma'am. Yes, perfect, perfect. Okay, are there more students? Probably we'll wait for another 1 minute, just in case someone else wants to join, and then we can start. Yeah, they're all coming in. Okay.
All right. A very warm welcome to all of you to the GDS sessions. My name is Rashmi and I am the faculty with the tourism school. Right. You must have had an introductory class with Mayank sir yesterday. So I am now here to take the technical part of it forward. Yes. Okay. So before I begin, I hope you all know that you would be doing, you'll be learning the GDS, that is Galileo. Yeah. Right. Okay. So you can probably just one moment. Okay. So I hope you know that there are more than one GDSs which are available worldwide. Right. Galileo is just one of them. So you have Amadeus, you have WorldSpan, you have Sabre, you have Galileo. All these are GDSs, right? Why we call them a GDS is mainly because of the reason that they are a global distribution system, right? So GDS, because they are available globally, you can book tickets for your passengers or your customers, either online on a GDS now when the facility is available, or you can do it offline when you're working in a travel agency also, right? So GDS, that stands for a global distribution system. Yeah. So when we have a GDS, that means it is available in various countries all over the world. If you're working on a system which is available right in front of you, if you're sitting in a travel agency, you call it a CRS, which is a computerized reservation system, right? So I'll be making a note of all these abbreviations and I'll be showing it to you, like writing it in a word format. So आप उसको लिख सकते हैं. You will be able to write them as well, right? So when we say GDS, when we say CRS, yes, you must at least have the basic knowledge of the computer system, right? Which nowadays there is no problem because everybody is working online. Everybody knows what is the hardware, what is the software, how do you download a software, how do you run it, right? So there is so much of exposure which the pandemic has given us that you will have no problem as such in operating a system. Right? What you actually need to learn, however, is that what are the technical commands? क्या commands हैं जो आप जब execute करेंगे तो आपको उसका result मिलेगा, right? So we know that we are over here as budding travel agents या जो travel agencies को join करेंगे या airlines को join करेंगे या अपनी agency खोलेंगे या tourism या tour operator बनेंगे, तो जिस भी वे में आप इंडस्ट्री में आएंगे आपको रिजर्वेशंस की जरूरत तो डेफिनेटली पड़ेगी, राइट? तो जब तक आप रिजर्वेशन नहीं करेंगे पैसेंजर की, when you can't book, if you can't book the passenger going from one place to another, then the entire process of being in travel industry will go futile, right? तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. That is why GDS plays a very big role in giving you a platform in which you can book tickets for your customers, right? So GDS जब आप काम करना शुरू करेंगे, nowadays GDS has come up with very easy ways of booking fares, booking PNRs for a passenger. So PNR, that means a passenger name record, right? जैसे आप लोगों ने ट्रेन से कभी ट्रैवल किया तो आपके पास एक टिकट आता है, टिकट के ऊपर एक 10 डिजिट न्यूमेरिकल होता है जो आपका PNR होता है. तो GDS में भी आपके पास एक PNR आता है जिसमें अल्फाबेट्स और नंबर्स जो है वो मिक्स होते हैं और उसी PNR नंबर के अंदर आपकी ट्रैवल का पूरा रिकॉर्ड स्टोर्ड होता है, right? That is called a PNR. So that is the main reason that we book a passenger, because now the passenger will be able to travel on that particular PNR. वो उस PNR पे ट्रैवल कर सकता है,
राइट। सो उस PNR के अंदर क्या क्या डिटेल डालना है, क्या डेटा डालना है, कितना आप पैसेंजर्स बुक कर सकते सॉरी बुक कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या स्पेशल इंफॉर्मेशन आपको डालनी चाहिए, उनके कॉन्टैक्ट्स किस फॉर्मेट में होने चाहिए, उनके टिकट्स कैसे बनने चाहिए, वो सारा इंफॉर्मेशन जो GDS है वो आपको एक कमांड के तौर पे बताता है। सो यू शुड नो दोस कमांड्स। जैसे कि आप अपने गूगल अकाउंट को जब एक्सेस करते हो तो आपके पास एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी आता है, राइट। अगर आप वो ईमेल आईडी किसी और को दे दो तो क्या वो आपको आपका गूगल अकाउंट यूज कर सकता है? उसके साथ उसको क्या देना पड़ेगा? पासवर्ड। पासवर्ड पासवर्ड। परफेक्ट। बिल्कुल उसी लाइंस पे आपका GDS भी वर्क करता है। तो जब भी आप GDS पे काम करने के लिए शुरू करेंगे, GDS आपको आपका एक लॉगिन आईडी देगा और उसके साथ आपका एक सिक्योर पासवर्ड आपको दिया जाएगा जब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे। व्हाई? बिकॉज यू आर गोइंग टू बुक टिकट्स फॉर योर पैसेंजर्स। आप उनकी जर्नी की सारी डिटेल्स उसमें डालेंगे। रिमेंबर, every PNR, every booking that you make is a secured booking. Secured मतलब आपके अलावा अगर कोई उसको एक्सेस करता है तो उसको उस चीज का राइट आपसे मिलना चाहिए। गेटिंग इट? आप जो बुकिंग बनाएंगे उसका राइट आपके पास होगा। अगर आप उस बुकिंग में कुछ ऑल्टरेशन कर रहे हैं तो वो राइट भी आप ही के पास होगा। अगर आप किसी और को उस बुकिंग में चेंजेस करने का राइट दे रहे हैं, दैट मीन्स आप उसको अपनी विश से दे रहे हैं, अपनी सहमति से दे रहे हैं। तो जितनी बार हम बुकिंग करते हैं हम अपने साइन इन के थ्रू करते हैं, राइट। तो जब हम गैलीलियो सिस्टम ऑपरेट करेंगे तो हमारे को एक यूनिक साइन इन उस एजेंसी में दिया जाएगा और उस साइन इन के थ्रू हम सिस्टम को ऑपरेट करेंगे। रिमेंबर, साइन इन इज जस्ट लाइक साइन इन एंड पासवर्ड आर जस्ट लाइक योर की। अगर आपने की गलत हाथ में दे दी तो कोई आपकी पैसेंजर की बुकिंग के साथ टैंपरिंग भी कर सकता है, राइट। सो जैसे कोई आपके गूगल अकाउंट को हैक करके उसका मिसयूज कर सकता है। इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट, राइट। सो जब भी आपके साइन इन के लिए आपको एक साइन इन यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है तभी आप GDS पे वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा उसके बिना आप GDS पे वर्क नहीं कर सकते, राइट। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? मैडम ये पासवर्ड और मतलब ये साइन इन होता है वो कंपनी अपने को देती है कि अपन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आपको आप जहां काम कर रहे हैं वो आपको देंगे। आप जिनके लिए काम कर रहे हैं, अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो फिर गैलीलियो आपको डायरेक्टली देगा, लेकिन आप जिनको ज्वाइन कर रहे हैं वो आपके लिए ये चीज प्रोवाइड करेगी। हम कैसे ले सकते हैं लाइक गैलीलियो से पासवर्ड एंड ऑल? ये पेड होता है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, आप जहां अगर आप किसी के पास वर्क कर रहे हैं, नहीं मैम, अपना स्टार्ट करना है। अपना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज हैं जब आप वो कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास साइन इन भी आ जाएगा। जैसे कई सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं, आप फिर उन सॉफ्टवेयर का पेमेंट करते हैं और फिर आप वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अब आजकल जैसे हो रहा है सब जगह, आप कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, कोई ऐप भी यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप पहले पे कर रहे हैं। सो इट इज जस्ट लाइक दैट। आपने पहले पे किया और फिर आपको उसका यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया, right? So it works like that only. There is no difference at all. Yes, any other question before I proceed? GDS पर हेलो, हाँ जी। GDS पर डोमेस्टिक फ्लाइट बुक कर सकते हैं? इंडिया की कौन कौन सी एयरलाइंस अवेलेबल है GDS पर? GDS जो है, जो कंप्यूटर सिस्टम है, उनके बहुत सारी एयरलाइंस के साथ टाई अप होते हैं। सो जिन जिन एयरलाइंस के साथ टाई अप है वो सारी एयरलाइंस आपको सिस्टम पे दिखाई देंगी आप जितनी बार बुकिंग करने के लिए कमांड प्रेस करें। तो
तो आपको एयरलाइंस याद रखने की जरूरत नहीं है, जो एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं उस सिस्टम के साथ में बेसिकली 90% ऑफ द एयरलाइंस आर ऑल GDSs, सबके ऊपर है, राइट। अब एयरलाइन जो है, अब आप सोचिए जब GDS नहीं था तब एयरलाइन अपने टिकट्स कैसे सेल करती थी? एयरलाइंस के ऑफिसेस थे, लोग एयरलाइन के ऑफिस जाते थे, वहां पे जाके टिकट बुक कराते थे और फिर वो ट्रैवल करते थे। जैसे ही GDS आया, एयरलाइंस ने अपना सारा रिजर्वेशन करने का जो डेटा था वो GDS के ऊपर डाल दिया, GDS से कनेक्ट हो गए। सो देयर इज अ कनेक्शन कि जी पहले जो एयरलाइंस, कुछ एयरलाइंस ही अपने ऑफिस, अब कितने ऑफिस कर लेंगी एयरलाइन? 10 कर लेंगी, 20 कर लेंगी, 30 कर लेंगी, उनको मेंटेनेंस भी तो चाहिए, then you have to run those offices also. So with GDS things got simplified. GDS became a one-stop shop और सारी एयरलाइंस ने अपना डेटा जो था वो GDS पे डालना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ से यहाँ तक ऑपरेट करती हूँ, ये मेरी क्लासेस हैं, ये मेरे फेयर्स हैं, ये मेरी सर्विसेज हैं, सब कुछ। तो क्या बना GDS? It became a central reservation system. Central, something which contained everything. तो उसके थ्रू सारी एयरलाइंस जब सेल कर रही हैं और हर ट्रैवल एजेंट के पास एटलीस्ट एक GDS है, तो आप सोचिए कि एयरलाइंस जितने ऑफिसेस नहीं बना सकती थी उतने तो उससे बहुत ज्यादा ट्रैवल एजेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपके 5 एयरलाइन के ऑफिसेस एक लोकेलिटी में है तो शायद आपको वहां पे 50 ट्रैवल एजेंट्स मिलेंगे। इफ यू सी द रेशियो, तो एयरलाइन ने क्या किया? एयरलाइन ने अपना जो डेटा जैसे ही ट्रैवल एजेंट्स को देना शुरू किया थ्रू द GDS, उनकी सेल बढ़ गई, इट इंक्रीज्ड। जैसे ही वो सेल बढ़ी उनको, बिकॉज ट्रैवल एजेंट्स कैन रीच टू अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को रीच कर सकता है ट्रैवल एजेंट, एयरलाइन नहीं कर सकती। एक ट्रैवल एजेंट है, एक टूर ऑपरेटर है, उसके जो कस्टमर्स हैं वो एयरलाइन के पास शायद एक का दुक्का ही जाए, उससे ज्यादा तो जाएंगे ही नहीं, लेकिन वो ट्रैवल एजेंट के पास बार बार आएंगे क्योंकि ट्रैवल एजेंट को वो अप्रोच कर सकते हैं। तो जैसे ही GDS आया, सारी एयरलाइंस का डेटा जो सेंट्रलाइज हुआ, इट एक्चुअली रिजल्टेड इन अ लॉट ऑफ रिजर्वेशन, बहुत ज्यादा ट्रैवल होना शुरू हुआ, right? That was the boom for a travel and tourism industry, and it is going on even today, right? It's not just कि ये पैंडेमिक की वजह से एयरलाइन इंडस्ट्री या ट्रैवल इंडस्ट्री हिट हुई है, ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत बार हिट हो चुकी है, and it has revived itself also, right? When there was an attack on Twin Towers, तब हिट हुई थी। कहीं पर भी कोई एपिडेमिक आ जाता है, प्लेग आ जाता है, तब ट्रैवल हिट हो जाता है। कुछ भी चीज होती है, कहीं पर भी अनरेस्ट होता है किसी भी कंट्री में, चाहे पॉलिटिकल अनरेस्ट है, चाहे वहां पर टेररिस्ट अटैक हो रहा है, कोई किसी भी चीज की वजह से वहां सबसे पहले इंडस्ट्री जो हिट होती है वो टूरिज्म इंडस्ट्री है। बट जितनी जल्दी हिट होती है उतनी जल्दी रिवाइव भी करती है, एंड आई हैव सीन इट ओवर द इयर्स दैट इट, जैसे आप खाना खाना नहीं बंद कर सकते, आप घूमना भी नहीं बंद कर सकते, राइट? कोई घर के अंदर हमेशा के लिए नहीं बंद होके रह सकता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई हमेशा भूखा नहीं रह सकता। सो इट्स एन इंडस्ट्री व्हिच रीजनरेट्स इटसेल्फ and it will keep on reviving itself and it will keep on growing with the years to come, right? So GDS basically उसने क्या किया, उसने ट्रैवल एजेंट और एयरलाइन को वो साथ मिलाया और पैसेंजर और उसके घूमने के जो रास्ते थे उनको बिल्कुल नैरो डाउन कर दिया, एकदम छोटा कर दिया, द शॉर्टेस्ट रूट। ओवर द इयर्स वो ट्रैवल एजेंट ने भी अपनी सब चीजें और इम्प्रोवाइज करी, एंड यू सी ट्रैवल पोर्टल्स लाइक yatraonline.com, you see makemytrip.com, राइट? वो दूरी जो थोड़ी बहुत भी दूर थी वो अब और पास हो गई। तो क्यों? क्योंकि कस्टमर अब कई बार अपनी बुकिंग खुद ही कर लेता है, लेकिन कस्टमर अपने लिए अपना GDS नहीं खरीद सकता। आप समझ रहे हैं? मुझे अगर कहीं जाना है तो मैं GDS नहीं खरीदूंगी, मुझे कहीं जाना है तो मैं अपनी वेबसाइट नहीं बनाऊंगी,
या तो मैं एजेंट के पास जाऊंगी या मैं पोर्टल पे जाऊंगी। पोर्टल कौन चला रहा है? वो भी एक एजेंट ही चला रहा है। गेटिंग इट? तो चाहे आप कितना भी इंडिपेंडेंट कर दें ट्रैवलर को, ट्रैवल एजेंट के ऊपर की उसकी डिपेंडेंसी कहीं नहीं जाती है। इट विल ऑलवेज बी देयर। You can't eliminate a travel agent from the travel industry circle. आप उसे हटा नहीं सकते, right? And that is where, to facilitate people, GDS plays a very big role. Even आपके जो वेबसाइट पोर्टल्स है, यात्रा ऑनलाइन, मेक माई ट्रिप, इनके पीछे भी GDS चल रहा होता है। विदाउट GDS you cannot run any portal also. तो GDS को समझना उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि आप पैसेंजर की रिजर्वेशन को बिना किसी दिक्कत के कर सके। There should be no hitch, there should be no problem in making a reservation. If a passenger goes on a flight uneventful, उसकी जर्नी अच्छी रहती है, तो वो वापस आके और 10 को बताता है। And that is how the business spreads. Travel industry is an industry that solely operates on word of mouth. चाहे आप होटल्स ले लीजिए, चाहे आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम ले लीजिए, चाहे आप ट्रैवल एजेंसीज ले लीजिए, they all operate on the word of mouth, right? So always it is like that. So if you are fluent with the GDS, आपको GDS समझ में आ गया, आप reservations कर सकते हैं पैसेंजर्स को उनकी जरूरत के हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन देके आप एक बुकिंग बना सकते हैं। That means you have achieved passenger or customer delight, right? Once you achieve customer delight, then things go on smoothly, right? Okay, so basically the objectives that will be involved जब हम आपको ये कोर्स शुरू करा रहे हैं, तो उसमें पहली चीज होगी that you will be able to see what the Galileo system looks like, right? जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको कमांड्स डालनी होंगी। कमांड्स के साथ साथ आपके पास एक और ऑप्शन आएगा जब आप वर्क करना शुरू करेंगे गैलीलियो पे, which is called a GUI, which is called a graphical user interface. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है? बॉक्सेस हैं और आपको उन्हें फिल करना। जो एक नॉर्मल सिस्टम में आप कमांड पूरी डालेंगे, एक ग्राफिकल सिस्टम में आप सिर्फ बॉक्सेस फिल करेंगे, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, क्लास, एयरलाइन, ये आप लिखेंगे। तो उससे क्या होता है कि कई बार जब आपको लगता है कि मुझे इसकी कमांड तो याद नहीं आ रही, आप इमीडिएटली ग्राफिकल पेज पे जाते हैं और बुकिंग जो है वो फटाफट कर लेते हैं, राइट? सो दोनों ऑप्शंस आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे। चाहे तो आप कमांड्स को याद करके कर सकते हैं बुकिंग, चाहे तो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे जाके और बॉक्सेस को भर के कर सकते हैं। तो उसको हम बेसिकली गैलीलियो में दो पार्ट्स होते हैं, दो इंटरफेस मिलते हैं आपको। एक जिसे हम फोकल पॉइंट बोलते हैं, जो विंडोज की फॉर्म में होता है, और एक जिसे हम स्मार्ट पॉइंट बोलते हैं, जिसपे कि आप स्मार्टली वर्क करते हैं अगर आपको कमांड्स जो है वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है। बट ट्रस्ट मी, जब आप सब सीख जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बॉक्सेस भरने से अच्छा है मैं टाइप ही कर लूं, right? So it is just a matter of practice and a matter of time that you will be comfortable with the system, and it is a very very user friendly system. कुछ ऐसा नहीं है कि आपको भारी भरकम चीजें याद करनी है। They are very very simple to understand. That is why we are here to make you understand each and every command which you have to put for creating a booking, right? So the next part that we will discuss about this particular course is investigate the various methods of searching and quoting fares. बुकिंग ठीक बनाना एक पार्ट है, सही फेयर कोट करना भी उसका इक्वल पार्ट है, राइट? तो फेयर्स के साथ में क्या क्या आपके गाइडलाइंस हैं, क्या आपकी डेट ऑफ ट्रैवल है, क्या सीजनैलिटी है, किस हिसाब से आपको फेयर लेना चाहिए, कौन सी क्लास का है, वो सारी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी कि किस तरह से आप एक बुकिंग के लिए फेयर को चूज कर सकते हैं,
राइट। गलत फेयर देना गलत इसलिए होता है क्योंकि अगर आप पैसेंजर से ज्यादा पैसे ले लेंगे तो डेफिनेटली पैसेंजर को पता चलेगा और वो आपसे रिफंड मांगने आ जाएगा, राइट। सो जो आइटा है, जो जिसके हिसाब से सारे फेयर्स गवर्न होते हैं, आइटा सेज नेवर ओवरचार्ज अ पैसेंजर एंड नेवर अंडरचार्ज एन एयरलाइन, राइट। सो मीनिंग पैसेंजर से ज्यादा नहीं लेना और एयरलाइन से कम नहीं लेना। क्यों? पैसेंजर से अगर आप ज्यादा फेयर लेंगे तो पैसेंजर आपसे रिफंड मांगने आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पैसेंजर भी उतने एजुकेटेड है जितने के एजुकेटेड हम हैं। एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट, राइट। और मे बी द पैसेंजर कैन कम टू नो अबाउट इट थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ। और दूसरी चीज, अगर हम एयरलाइन का जो फेयर है उससे कम है फेयर पैसेंजर से चार्ज करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? एयरलाइन आपको एक डेबिट मेमो भेजेगी और आपसे जो डिफरेंस है फेयर का वो आपसे कलेक्ट करेगी, पैसेंजर से नहीं लेगी। पैसेंजर को वो जाने देगी, लेकिन जिसने बुकिंग की है उससे वो अमाउंट डिडक्ट कर लेगी, राइट। एंड ट्रस्ट मी, इट इज वेरी सॉरी सिचुएशन जिसमें एयरलाइन डेबिट मेमो भेजती है, क्योंकि इवेंचुअली हो सकता है कि वो उस ट्रैवल एजेंट को अपने पैनल से ही हटा दे, राइट। सो इट कैन हैव सीरियस रेपरकशंस आल्सो अगर आप करेक्ट फेयर चूज नहीं कर रहे हैं तो, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिससे कि जीडीएस आपको हेल्प करेगा टू गो थ्रू ऑल दीज प्रोसीजर्स। देन इंटरप्रेट द ट्रैवलपोर्ट गैलीलियो फेयर कोड एंड सर्टेन स्टेटस इंडिकेटर्स। तो फेयर कोड के लिए भी आपके पास एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आएगा एंड यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट फेयर्स की क्या क्या फेयर कैसे कैसे आप चूज करके दे सकते हैं। ऑल द फेयर्स आर एज पर द डेट ऑफ ट्रैवल। जितने भी फेयर है वो सब डेट ऑफ ट्रैवल से गवर्न होते हैं। अगर आपका पैसेंजर 15 दिसंबर को जा रहा है तो अलग फेयर होगा, अगर आपका पैसेंजर 15 जनवरी जा रहा है तो हो सकता है वो फेयर बिल्कुल ही चेंज हो जाए। Fares keep on changing and fares are governed by many restrictions also. तो कहते हैं जितना कम फेयर होता है उतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, और जितना ज्यादा फेयर होता है उतनी ही कम रिस्ट्रिक्शंस होती है, right? This we will see when we will start to attach fares with the PNRs of the passengers. हमें ये तब पता चल जाएगा एकदम से, right? Then request and interpret flight availability and timetable displays. ये आपको बताया जाएगा। So flight availability meaning कि कौन सी फ्लाइट कब जा रही है, कौन से डेज पे ऑपरेट कर रही है, ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। कई बार आपको ये भी पता चलेगा कि रास्ते में उसके ऑनवर्ड आपको मील मिल रही है, नहीं मिल रही है, बीच में कितने इंटरमीडिएट स्टॉप्स है, क्या वो डायरेक्ट है, क्या वो वाया कनेक्टिंग फ्लाइट है। तो ये कौन सी कमांड से आपको पता चलेगा? ऑल दीज कमांड्स विल बी टॉट टू यू, राइट। एंड अवेलेबिलिटी मतलब कौन सी फ्लाइट में कितनी सीट्स अवेलेबल है जो आप पैसेंजर के लिए बुक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया की फ्लाइट है, एयर इंडिया की फ्लाइट में आप इकोनॉमी क्लास में कितनी सीटें हैं जो आप ले सकते हैं अपने पैसेंजर के लिए, वो सारा डिस्प्ले आपको जीडीएस पे दिखाई देगा। All that you will be able to see. Then the next part is selling, amending and cancelling the flight reservation. अब हमेशा तो ऐसे नहीं होता कि आपने एक बुकिंग बनाई और पैसेंजर्स पे ट्रैवल कर गया। It doesn't happen all the time. पैसेंजर आपके पास वापस भी आ सकता है, वो आपसे फ्लाइट चेंज कराए, फ्लाइट आपकी क्लास चेंज कराए, कभी अपना ओरिजिन चेंज कराए, कभी अपना डेस्टिनेशन चेंज कराए, कभी इंटरमीडिएट सिटी चेंज कराए। तो एक पीएनआर बनने के बाद उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स पॉसिबल है। तो वो अमेंडमेंट्स आप कैसे करेंगे और किन चीजों को ध्यान में रख के करेंगे, ऑल दैट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस करिकुलम इन गैलीलियो, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब आप अमेंडमेंट भी करते हैं तो भी आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, दैट वी विल बी टेलिंग, right? Then input the mandatory and optional booking fields in the booking file. तो गैलीलियो में बुकिंग
PNR को हम बोलते हैं बुकिंग फाइल, BF, राइट। तो बुकिंग फाइल जो है या PNR जो है, उसमें कौन कौन सी मैंडेटरी चीजें, मैंडेटरी मतलब जिनके बिना वो बुकिंग बन ही नहीं सकती, वो मैंडेटरी चीजें होंगी, और ऑप्शनल वो होंगी जो आप डालेंगे एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द पैसेंजर। फॉर एग्जाम्पल, पैसेंजर को किस तरह की मील चाहिए, राइट, पैसेंजर को किस तरह की सीट चाहिए, ऑल दैट। यस मीनाक्षी, यू हैव अ क्वेश्चन? मैम इसमें हमें पूरा टिकट इश्यू करना पूरा सिखाएंगे ना? हाँ, ऑब्वियसली टिकट पूरा पूरा का पूरा टिकट कैसे बनेगा आपका, आपकी बुकिंग डिटेल, आपका फेयर कौन सा लेना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ओके, और मैम ये कितने और- टाइम में हम गैलीलियो बिल्कुल ऑन टिप्स हो जाएगा हमारे, लाइक 1 month 2 month, हाउ मच टाइम इट विल टेक? मेरे हिसाब से तो मैं जैसे जैसे पढ़ाती जाऊंगी आपको याद होता जाएगा। राइट, बाकी डेफिनेटली इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस ऑल्सो। जब आप वर्क करना शुरू करेंगे तो चीजें और ज्यादा आपकी पक्की होती जाएंगी, ओके, राइट। सो अगर आप समझ के करेंगे तो आपके पास, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने में, because all of you are matured enough to understand what is being taught to you, and we will make it simple. हम कोई यहाँ पर jargons या hard language नहीं use करेंगे, we will make it as simple as that to learn, to make you learn. That is our objective. Yes. Anyone else has any question before I proceed? Okay. Then next one is what you will be learning is adding, amending, cancelling a passenger service information, booking file service request, कि कोई चीज आपको कब अमेंड करनी है, वो सारी अमेंडमेंट आपको PNR में किस तरह से करनी है वो बताएंगे। And work with the Travelport Galileo queuing system. There are also queues. Queues मतलब एक लाइन में PNR सिस्टम में आके खड़े हो जाते हैं, राइट। यू विल सी कि जो जो आप PNRs बना रहे हैं वो कैसे कैसे उनके अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है, वो हमेशा एक क्यू में होते हैं और उसको हम गैलीलियो क्यूज बोलते हैं, राइट। सो इन दैट क्यूज यू विल बी एबल टू सी दैट देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द एयरलाइन। अब जब आप PNR बना रहे हैं तो डायरेक्टली पैसेंजर आपको जो बुकिंग दे रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप एयरलाइन को भेज रहे हैं, गेटिंग इट। आपके और एयरलाइन के बीच में तो कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं। तो अगर कोई कॉन्फर्मेशन चाहिए, कोई मील रिक्वेस्ट है आपकी जो आपने भेजी है, तो एयरलाइन आपको डायरेक्टली उसकी कॉन्फर्मेशन देती है कि वो वाली मील उनके पास अवेलेबल है नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एयरलाइन डायरेक्टली आपको देती है। आपको एयरलाइन वो वाली इंफॉर्मेशन जो है फिर आगे पैसेंजर तक देते हैं, राइट। एयरलाइन जो है वो कभी भी डायरेक्टली पैसेंजर को कांटेक्ट नहीं करती है। Airline will always contact the travel agent. Only when the travel agent is unavailable for flight schedule change, for any cancellation of flights, the airline will call the passenger. Right? That is why जब भी हम बुकिंग बनाएंगे उसमें हमें ट्रैवल एजेंट का कॉन्टैक्ट, उसमें हमें पैसेंजर के सारे कॉन्टैक्ट, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, whenever he is available, वो सारे हमें डालने पड़ते हैं। Because if there is a flight schedule change, there is a cancellation, the passenger has to be contacted. अब आप सोचिए, आपने पैसेंजर का ऑफिशियल मोबाइल डाल दिया, ऑफिस का मोबाइल, जो जब वो ऑफिस में रहता है 9 to 8 या 9 to 9 वो ऑफिस में रहता है, आपने वो बुकिंग में डाल दिया, और उसके बाद का कॉन्टैक्ट तो पैसेंजर का किसी के पास है ही नहीं। अब अगर फ्लाइट रात को 2 बजे उड़ रही है तो एयरलाइन आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रही, तो वो पैसेंजर को कैसे कांटेक्ट करेगी, क्योंकि वो तो ऑफिस बंद हो चुका है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम जब बुकिंग फाइल्स बनाएंगे तो हम उसके अंदर डालेंगे, और ध्यान से डालेंगे कि हमारे से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना रह जाए जिसकी वजह से पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट हो। गेटिंग इट। कई पैसेंजर्स होते हैं जो अपने पर्सनल मोबाइल नंबर्स नहीं देना चाहते, बट अगर वो मोबाइल नंबर्स नहीं देंगे तो किसी भी फ्लाइट चेंज, फ्लाइट कैंसिलेशन, किसी भी टाइम पे आप पैसेंजर को कैसे कांटेक्ट करेंगे? देयर विल बी नो वे। एंड व्हाट विल हैपन इन दैट
in that scenario, the passenger will probably even miss a flight. उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी फ्लाइट तो रीशेड्यूल हो गई थी, 1 घंटा पहले ही चली गई, या मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी और पैसेंजर लगेज के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाएगा. Right? All this will cause a lot of discomfort. So that is why there has to be a transparency when you are booking a PNR on the GDS or on the website portal, that all the information has to be added in a very articulate manner. आप ऐसे कुछ भी enter नहीं कर सकते. Right? Then also you Ma'am, will be, yes. मैम जैसे हाँ. आपने बोला ना अभी चेंज हो जाते हैं, एयरलाइन इमीडिएटली कुछ चेंज कर देते हैं, तो ये एकदम से विद इन 1 आवर, विद इन 2 आवर्स ऐसे भी नहीं चेंजेस नहीं आ नहीं जाते हैं? नहीं नहीं, जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली ऐसा नहीं होता. बट सी आप चीजों को एंटिसिपेट नहीं कर सकते, राइट? Yes. तो प्रीपोनमेंट कम होती है, पोस्टपोनमेंट ज्यादा होती है, समझ रहे हैं? तो ऐसा वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया वो इसलिए दिया कि मतलब आपको उसका वैल्यू समझ आए, कि पैसेंजर को समझाने के लिए कि आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए. Okay. तो ऐसे नहीं होता कि 10 मिनट पहले ही एयरलाइन ने बोला कि भाई हम तो अब जाएंगे ही नहीं. बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में होता है. अगेन दीज आर इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस. जब बहुत ज्यादा फॉग है, एयरलाइन नहीं जा सकती, इट कांट फ्लाई, राइट? कहीं जहां वो जा रही है वहां पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, सो दे कांट इवन लैंड इन दोज प्लेसेस. सो दैट इज दोज आर इमरजेंसी सिचुएशंस. बट अदरवाइज एयरलाइन आपको एम्पल नोटिस देती है कि ये फ्लाइट जो है ये रीशेड्यूल हो रही है, ये फ्लाइट जो है ये अब इस टाइम पे नहीं जाके इस टाइम पे जाएगी. But then that information has to be passed to the passenger. Getting it? Passenger अपने हिसाब से 3 घंटा पहले, 4 घंटा पहले अपने घर से निकलता है. अगर उस टाइम पे उसे इंफॉर्मेशन मिल जाए कि मेरी फ्लाइट तो और 2 घंटा लेट है, तो पैसेंजर उतना ड्यूरेशन ऑफ टाइम एयरपोर्ट पे क्यों स्पेंड करेगा? Getting it? तो ये कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं जिसके लिए हमारे को पैसेंजर के साथ, एयरलाइन के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है. Because as travel agents, we are responsible for the booking. As travel agents, we are responsible for any communication which is given to us by the airline. So हम दोनों के बीच के mediators होते हैं. Right? So you will also be taught to complete and pass this course assessment and obtain a sign on authority with the ट्रैवलपोर्ट गैलीलियो. मीनिंग आप जब ये पूरा कोर्स कर लेंगे, आपका एग्जाम हो जाएगा, जब भी जॉब करने के लिए जाएंगे, यू विल बी एलिजिबल कि आपको साइन इन मिलेगा और आप उस टाइम पे जीडीएस पे काम करना शुरू कर सकते हैं. राइट? सो ऑब्वियसली सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. सो दैट इज व्हाई वी आर हियर टू अटेन दैट सर्टिफिकेशन. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम जैसे आपने ये इसमें जो हम बुकिंग करते हैं यहाँ पर, तो इसमें आप हमें पैसेंजर के लिए होटल बुकिंग, वैसे कार बुकिंग, ऐसे ये भी बता जीडीएस पे ही करना? ये जीडीएस पे भी कर सकते हैं. देखिए आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं. सारे जीडीएस आपको कार बुकिंग और होटल बुकिंग करने की फैसिलिटी देते हैं, गैलीलियो भी देता है. कई बार जो प्रॉपर्टीज हैं, होटल प्रॉपर्टीज है या कार कंपनीज है, वो अपने जो रेट्स हैं वो अलग अलग रेट्स शेयर करती हैं अपनी वेबसाइट पे और जीडीएस पे. तो आपको एज ट्रैवल एजेंट्स ये जरूर वर्कआउट करना पड़ेगा कि आपको पैसेंजर को जो रेट देना है वो आप जीडीएस पे कम आ रहा है वो दे सकते हैं, या पोर्टल पे कम आ रहा है वो दे सकते हैं. तो वो इस तरह से होता है, बट प्रोविजन पूरा है. मैम ये चीज एयरलाइंस के लिए भी है कि उनके पोर्टल पे अलग फेयर हो और जीडीएस पे अलग फेयर हो? जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन 100% तो कोई भी नहीं बोल सकता. एयरलाइन कई बार सडनली कोई एक फेयर निकाल देती है जो आपको जीडीएस पे नहीं दिखाई देता सडनली, राइट? तो एयरलाइन आप ये बोल सकते हैं एयरलाइन तो मास्टर है, राइट? तो हमको दोनों चीजें देख के चलनी पड़ती हैं. बट जनरली ऐसा नहीं होता कि जीडीएस पे कोई अलग फेयर दिख रहा है और वेबसाइट पे अलग फेयर दिख रहा है. लेकिन एज यू कैन से एज, क्योंकि आप इतने जागरूक हैं, अगर आप इतने जागरूक हैं और आप इतने सतर्क हैं, तो आप दोनों चीजें हमेशा चेक करें. यू हैव टू बी अवेयर.
आप बिल्कुल आंख बंद करके ठीक है यही वाला फेयर होगा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके बाजू में जो ट्रैवल एजेंसी हो वो पोर्टल पे देखे, उसको लोअर फेयर दिखे और वो पैसेंजर को दे दे और आपका पैसेंजर आपके हाथ से छूट जाए। Getting it? So we have to be careful. Obviously, because इतने सारे मीडियम्स हैं जिसके थ्रू एक जना अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है, तो जो मीडिएटर बैठा है उसको वो सारे मीडियम्स चेक करने पड़ेंगे। आप एक ही मीडियम पे 100% रिलाई करके बिजनेस नहीं कर सकते। बट हाँ, आपके पास सारे मीडियम्स का एक्सेस है, आपके पास जीडीएस भी है, आपके पास पोर्टल भी है, आप एयरलाइन को डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, आप होटल कंपनी को भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आपके पास मीडियम सारे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। Yes. सीमा आप कुछ कह रहे हैं, आप म्यूट पे हैं। यस यस मैम। हाँ मैम वो आप जो ये हम लोग बुकिंग बनाएंगे होटल बुकिंग के और कार बुकिंग, मैम ये जीडीएस में सिखाया जाएगा हम लोगों को? हाँ, सी बेसिकली हम जो बुकिंग्स बनाएंगे उनको हम ऐसे बनाएंगे कि हमारे को लाइव बुकिंग नहीं बनाने को मिलेगी। रिमेम्बर, हम अगर लाइव बुकिंग बनाएंगे तो वो एयरलाइन के पास पहुंच जाएगी, और अगर वो लोग ट्रैवल नहीं करेंगे तो फिर हमको पेनल्टी देनी पड़ेगी। बट हाँ, हम स्टेज तक उसको जरूर ले जाएंगे कि उसके बाद हम आपको ये बता सकते हैं कि हाँ, नाउ दिस इज योर फुल पीएनआर। तो उस स्टेज तक हम उसे पूरा लेके जाएंगे, सारे एलिमेंट्स, सारी मैंडेटरी फील्ड, सारे ऑप्शनल एलिमेंट्स सब उसमें एंटर करने को बताएंगे हम। एवरीथिंग, एवरीथिंग, कुछ छोड़ेंगे नहीं। मैम कुछ ट्रेवल एजेंट्स होते हैं जिनके पास लोएस्ट, लाइक वो होते हैं कि लोएस्ट फेयर्स हैं, मैंने एक दो केसेस देखे हैं, तो मतलब उनके पास ऐसे क्या होता है कि उनके पास सबसे कम होते हैं? देखो उनको ना, अब जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मल लाइफ में भी होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, ठीक है ना। एक होलसेलर है जो बल्क में चीजें लेके सेल आउट कर रहा है, एक रिटेलर है जो शायद होलसेलर से ही ले रहा है और फिर सेल आउट कर रहा है, इसलिए दोनों के प्राइस में हमेशा डिफरेंस रहता है। सो द तो सेम थिंग अप्लाइज। जैसे वो आपने बताया कि बल्क में होता है, तो लाइक इज इट पॉसिबल कि वो पहले ही लाइक बल्क में वो टिकट्स ऐसे कैसे उनको मतलब मिल सकती हैं? कोई ऐसे पोर्टल वगैरह होता है या क्या होता है? नहीं, ये सारी आपकी क्लाइंटेल है, ये आपके कस्टमर्स है। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल कह लो कि नोकिया एक कंपनी है, ठीक है, और एबीसी ट्रैवल्स ने नोकिया के साथ में टाई अप कर लिया ओके। कि जितने भी लोग नोकिया के दिल्ली से टोक्यो जाएंगे उन सबकी बुकिंग एबीसी ट्रैवल्स ही करेगा। ओके। तो क्या हुआ, एबीसी ट्रैवल्स के पास दिल्ली से टोक्यो जाने वाली जो फ्लाइट्स है जापान एयरलाइंस की, उसकी बहुत सारी बुकिंग्स आती हैं। तो एयरलाइन क्या करेगी, एयरलाइन अपना ईमानदारी, अपना वो दिखाने के लिए, अपनी वो दिखाने को वो उनको कम फेयर देगी। वो नेगोशिएट करेगी कि हम आपको एक महीने में 30 टिकट्स देंगे एटलीस्ट, ओके। 30 पैसेंजर्स तो मिनिमम ट्रैवल करेंगे ही करेंगे, आप हमें नेगोशिएट करके फेयर दीजिए। अब वो नेगोशिएट करके जो फेयर एबीसी के पास आया वो शायद XYZ के पास नहीं होगा। तो XYZ क्या करेगा, XYZ बोलेगा कि ठीक है, मैं आपसे परचेज करता हूँ और फिर मैं आगे सेल करता हूँ। तो उससे क्या हुआ, पूरा मार्केट का जो चेन था वो खराब हो गया। आपने क्या किया, आपने पूरा मार्केट चेन स्पॉइल कर दिया। बट देन इस चीज को आप निग्लेक्ट भी नहीं कर सकते कि एक एजेंसी जो एयरलाइन को ज्यादा बुकिंग दे रही है और एक जो प्रोबेबली मंथ में 2 या 3 ही दे रही है, एयरलाइन का जो रुझान है वो ज्यादा उस पे जाएगा जो आपको ज्यादा बुकिंग दे रहा है। देखिए, तो यहाँ एक ट्रैवल एजेंट की कैलकुलेशन और नेटवर्किंग जो है वो इस्तेमाल होगी कि आपको पता है कि यहाँ से लेने पे और सेल करने पे भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप सीधे सेल करेंगे तो। तो यहाँ ये दोनों चीजें यूज होंगी। तो आप सोच रहे हैं कि एक ट्रैवल एजेंट का जो रोल है वो कितना मल्टी फैसेटेड है। बिल्कुल मैम। आप मतलब कुछ सोच भी नहीं सकता कि कोई किस एरिया में आपको और सोचना पड़ेगा जस्ट टू मेक श्योर कि आपके हाथ से कस्टमर ना छूटे। एग्जैक्टली। सो दैट इज द मेन पार्ट। इसलिए तो ये Okay. पे डिफरेंस वहां आता है। ठीक है।
Yes. So there were some terms which I used with you. So I'll just write the full forms on a Word file and you can probably copy that down. Yeah. So just give me a moment. All right, I'll just start with screen share. Okay, are you all able to see the screen? Yes, ma'am. Is the screen visible to you, this Word document? Yes, ma'am. Okay, fine. So the first one that we discussed was CRS. That stands for I'll just make the font a little bigger. GTS. And we had used BF, that means so these were the ones that we have just used. Yes? Is it okay with everyone? Yes, ma'am. Okay, perfect. Sorry. Yeah. Okay. So to begin with, I will show you a little bit of an information about Galileo,
how we start operating on Galileo, right? जो शुरू के हमारे information है. So I'll just share the screen with you once more. Okay. Are you able to see this document over here? Yes, so this is what we have just discussed, that you will be able to locate and display information, right? From Galileo online resources, you can create, change, retrieve booking files. You can quote and store fares, which are as per the needs of the customer. Then you can, as per the needs of the customer, you can issue itineraries, then give them tickets, sell, modify. You can cancel car rentals, hotel rooms, and flights as well. And these are the objectives that you will be able to do during the course as we proceed in Galileo. Right? Then you can use command shortcuts. आप देखोगे जैसे जैसे आप Galileo की window, which I'll be able to show you over here, you will be able to launch Travelport Smart Point and you can sign on to Galileo. तो वो sign on वाली entry मैं आपको बताऊंगी. Then identify the elements in the menu bar. You can work in the terminal window. Is everybody able to see these, or is it very small? It's Shall I enlarge? Yes, good, ma'am. Now it's okay? Are you able to see it now? Okay. Yes, ma'am. Yes. Okay. So identify the elements in the menu bar. Then use the PNR viewer window. आप कैसे PNR को view करना है? Access online help if you have any problem. Access the ASK Travelport or Ask Travelport as they call it. And how do you sign off? Now remember, आप जैसे अपने Gmail के account में अगर आप sign in करते हैं तो आपको sign out भी करना होता है. Right? So it is very important for you to sign out also. If you don't sign out, then anybody will be able to do any modification in your booking. आपकी modification हो जाएगी booking में, आपको पता भी नहीं चलेगा पीछे से किसी ने cancel कर दिया, क्योंकि आपने तो sign out करा ही नहीं, आप तो sign in करके और system को छोड़ गए. Right? So it is very important for you to sign off if you have signed on to the system. Right? तो basically क्या होता है, जो आपको user ID, password वगैरह दिया जाता है, अगर 30 minutes तक आप अपने system पे कोई काम नहीं कर रहे, तो वो automatic sign out हो जाता है. Right? But then 30 minutes के अंदर system में कोई भी booking को amend या cancel कर सकता है. Right? So once you launch Travelport Smart Point on your system, this is how it is going to look like. Right? जैसे ही software download होता है, जैसे ही software launch होता है, this is the first window that comes to you. Right? अब आप ऊपर देखेंगे, इसमें आपको सब चीजें दिखाई देगी. Travelport Smart Point is an automatically launched when you open Galileo desktop. जैसे ही आप desktop पे से application को खोलते हैं, ये automatically आपके सामने window खुल जाती है. Right? Now, if you see on the top,
It says Travelport Smart Point Window 1. So this is a single window that opens. जो background में है, that is a single window that opens. A, B, C, D, E. ये 5 आपके वर्क एरियाज होते हैं, राइट? आप लोगों ने कभी ना कभी किसी एक्सेल शीट पे काम किया होगा. Yes, ma'am. एक्सेल शीट होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5. तो क्या करते हैं उस काम, शीट 1 पे काम कर रहे हैं, सडनली याद आया शीट 4 पे ये चेंज करना है, फिर याद आया नहीं 2 पे भी चेंज कर रहा है, फिर याद आया नहीं 6 पे भी चेंज करना है. तो क्या हो रहा है, आप उस एक्सेल शीट को बंद करे बिना, अलग अलग शीट्स खोले बिना, एक ही शीट के ऊपर अलग अलग काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली. यही काम होता है इन वर्क एरियाज का. जब आप गैलीलियो में साइन इन करते हैं तो आप एक वर्क एरिया से दूसरे वर्क एरिया में जंप कर सकते हैं, राइट? क्यों जरूरत पड़ेगी? एनी गेसेस? वर्क एरियाज में जंप करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मल्टीपल बुकिंग. मल्टीपल बुकिंग. वेरी गुड, परफेक्ट. एक पैसेंजर आपके पास सामने बैठा है, एक पैसेंजर फोन पे है, आपने उसकी बुकिंग कंप्लीट नहीं करी. अब जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वो पैसेंजर जो है वो आपको छोड़ेगा नहीं. तो आप क्या करेंगे, आप इमीडिएटली दूसरे साइन में जाते हैं और वहां पर अपने दूसरी बुकिंग करनी शुरू कर देते हैं. तो क्या हो रहा है, आप दोनों पैसेंजर्स को हैंडल कर पा रहे हैं. Getting it? You are able to handle both the passengers. आपका बिजनेस लूज नहीं हो रहा. फिर आप क्या करेंगे, वापस से अपने पहले वाले वर्क एरिया में आएंगे, अपनी वो बुकिंग कंप्लीट करेंगे, दूसरे में जाके दूसरी कंप्लीट करेंगे, दोनों बुकिंग्स आपके पास है. This way you can do multitasking in different work areas and create different PNRs. That is the beauty of the system, right? ये वाली चीज आपको किसी भी पोर्टल पे नहीं मिलेगी. अगर आप किसी पोर्टल पे काम कर रहे हैं तो जब तक आप वो बुकिंग कंप्लीट नहीं कर देते, आप दूसरी बुकिंग कर ही नहीं सकते. This is where the first advantage of a GDS comes into the picture. क्योंकि आप GDS पे हैं तो आपको ये सारे एडवांटेजेस मिलेंगे, लेकिन अगर आप पोर्टल पे हैं तो आपको ये वाला एडवांटेज तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा. Getting it? So A, B, C, D, E are the 5 work areas of Galileo, right? वहीं पे सामने आपको दिखेगा माई कनेक्शन, राइट? अब माई कनेक्शन, क्योंकि आजकल सब चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वहां पर आप कनेक्टिविटी देख सकते हैं. यू कैन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एंड यू कैन सी दैट यस माई कनेक्शन इज ऑन. किसी वजह से आपको वो कनेक्शन ऑफ करना है, यू कैन गो ऑन द ड्रॉप डाउन, यू कैन डिसकनेक्ट इट. वो आपके हाथ में है. जो जना उस टाइम उस टर्मिनल को ऑपरेट कर रहा है, ये उसका राइट है, ये उसका प्रेरोगेटिव है. मैम कनेक्शन ऑफ करने का मींस फायदा क्या है? कुछ कोई फायदा या नुकसान नहीं है. आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उसको ऑन रख सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, फॉर वॉट एवर रीजन. जनरली जब आप काम कर रहे हैं तो वो ऑन ही रहना चाहिए. इसलिए उसके नीचे आप देखेंगे कि मेनू बार्स है, राइट? ईच मेन्यू, ईच part over here has a lot of information that is useful to you as a travel agent, right? Application, terminal, history, window, PNR, search, sell, tools, help. ये सब अलग अलग हैं. ये एक सेंटेंस नहीं है, ये अलग अलग वर्ड्स है. और हर ड्रॉप डाउन का अपना एक यूज है जब आप इस सिस्टम को ऑपरेट करना शुरू करेंगे. उसके बाद जो आपको यहाँ बीच में विंडो दिख रही है, दैट इज माई कनेक्शन. नाउ यू आर कनेक्टिंग टू द GDS. आपके और GDS के कनेक्शन के बीच में सिर्फ एक ही चीज है जो मिसिंग है, वो है साइन ऑन. जैसे ही वो साइन ऑन आपको मिल जाता है,
और पासवर्ड आपको एलोकेट हो जाता है, यू आर गुड टू गो टू यूज द सिस्टम, राइट। अब आप देखेंगे इन द एक्सट्रीम राइट साइड आपको एक हैश बार दिखेगा, हैश, देयर इज अ हैश ओवर हियर, राइट। देन यू हैव ऑल दीज आइकॉन्स। ये एक एक आइकॉन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी as we proceed with the system. Then you have certain shortcuts over here, MQ, QCT, P, O, FS. All these have relevance related to different parts which we will be covering during the PNR creation or booking file creation. इन सब का अपना अपना एक एस्पेक्ट है जो आपके हर किसी सब्जेक्ट के साथ में जुड़ेगा, टॉपिक के साथ में जुड़ेगा, right? So this particular smart point window, it provides the terminal window to enter format and obtain general responses to the right, and the PNR viewer window that automatically refreshes the booking file to the left. अब इसमें आप ध्यान देंगे बीच में जो है ये एक आपके पास डिवीजन है, आप देख रहे हैं, इट इज लाइक द पेज ऑफ अ रजिस्टर, लेफ्ट एंड राइट, राइट। तो इसमें क्या होगा जब आप देखेंगे कि एग्जीक्यूशन हो रहा है कमांड्स का, कमांड्स हम यहाँ लिखेंगे और उसका जो आउटपुट है वो आपको यहाँ दिखाई देगा, राइट। क्या फायदा होगा, दो क्यों दे दिए, एक ही दे देते। वंस यू स्टार्ट टू यूज इट आप देखेंगे कि उससे कितनी क्लैरिटी आती है, सब चीजें एक ही जगह जमा नहीं हो गई, दे आर नॉट क्लॉगिंग टुगेदर। आप सफाई से कमांड यहां दे सकते हैं और उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से आपको लेफ्ट में दिखाई देगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट विच डजंट हैपन इन ऑल द GDSs। कई GDSs में हम वही कमांड देते हैं, वहीं उसका आउटपुट दिखाई देता है, वहीं पे उसका रिजल्ट दिखाई देता है और सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पेज की तरह बस खत्म हो जाता है। But it doesn't happen like that in Smart Point. That is why it is called Smart Point. कि आपका कमांड देने का एक एरिया है और आपके कमांड के एग्जीक्यूशन का रिजल्ट देखने का दूसरा एरिया। सो आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे अनलेस कि आप आंखें बंद करके काम कर रहे हो, which no one can help. Right? Any questions still here? हमें ये पोर्टल प्रैक्टिस के लिए कब तक मिलेगा, ये हम कब प्रैक्टिस कर सकते हैं? जब हम पूरी तरह सीख जाएंगे तो फिर हम इसका जवाब दे सकते हैं। अभी तो हम सीखने के लिए तैयार होने चाहिए। सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि हमारे को कमांड्स की और इंटरफेस की पकड़ आ जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं हम किसी भी पैसेंजर को गलत जगह ना पहुंचा दें। आप समझ रहे सोहेल कि जाना था लंदन लेकिन पहुंच गए टोक्यो, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए, बराबर है ना। तो उसके लिए कमांड्स की पकड़ जरूरी है। उसके बाद आप उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करके कैसे आगे बढ़ेंगे वो डेफिनेटली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा। मैम आपकी तरफ से कितने टाइम में हो जाएगा ये कोर्स गैलीलियो का? आज तो मैंने शुरू किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक कंफर्टेबल स्पीड में सबको साथ लेके चलें और उसके बाद इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करें। मैम फिर भी अप्रोक्सीमेट कितना टाइम? मैं सच में नहीं बता सकती, वो ना डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी ग्रास्प करते हैं जो हम आपको बीच बीच में आपके इवैल्यूएशंस लेंगे, उससे क्या रिजल्ट मिलता है। तो उस पे डिपेंड करता है कि हम एक्चुअली में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब ये टाइम और डे देना तो बहुत डिफिकल्ट होगा, बट हाँ जब शुरू किया है तो खत्म तो होगा ही होगा, ये पक्का है। ठीक है। राइट। सो
I will be closing the class today at this. I hope कि आपको इसके background के बारे में मैंने enough information दे दिया है. Just in case you have more questions, please write them down, and I can take them up in tomorrow's class again. Right? And tomorrow we will start learning the commands. कल हम commands के साथ में सब चीजें शुरू कर देंगे. Right? Okay, Any thank you, ma'am. questions? Anyone else? No, thank you, ma'am. Okay. Yes, रहमान, आप कुछ पूछ रहे हैं? मैम सॉरी आई वाज लेट बिकॉज मेरा इधर इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने क्लास में ज्वाइन नहीं आप कर अभी सका अभी था। आए, हाँ. हाँ, बट रहमान इसलिए मैं कोशिश करिए, क्योंकि देखिए जी 1 घंटे जी जी की जी क्लास हाँ है ना, तो टाइम पे आएंगे और तो सब चीजें समझ में आएंगी, वरना गैप रह जाएगा. जी मैम ओके। सो दैट इज आपका कॉन्टैक्ट इम्पोर्टेंट. नंबर और समथिंग दैट आई कैन टूरिज्म स्कूल में आपको कोई भी क्वेरी है, आप वहां पर पूछ सकते हैं. ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। राइट, मैं उन्हीं का पार्ट हूँ. हाँ ओके। tourism school, Thank direct to Sharosh ma'am or the Deepika, and who should I ask? Anyone. Someone. Tourism school Okay. is the point of contact. Thank you, Yeah. ma'am. Thank you very much. Yeah. Thank you, Rahman. All right, so I'll be ending the session for today. Okay. So Thank I'll you. be seeing all of you tomorrow. Thank you very much. 7 Thank you very much. Thank you very much, ma'am. Thank you. Good night. Take care.